Hello guys, welcome back to another episode of Campus to Corporate Placement Journey. Today we have Deepika, who recently got placed at Zomato as a software developer. She will share her preparation strategy, interview experience, and some tips for juniors also. Hello Deepika. Mhm. First of all, congratulations. Thank you so much. How are you doing today? Uh, I'm doing great, and I'm really happy to be part of an internal group. And here's a correction that I'm not in Zomato. I am working with a Blinkit, not with Zomato. Though it company came with the name of Zomato, and its parent company name as Eternal. Eternal has a multiple companies inside that, like Blinkit, Hyperpure, Zomato, Nugget, and many more. So I was assigned to the Blinkit company, and it's been a great journey, honestly. I'm very happy with it. Yes, I agree with so many people, heard about this thing that Zomato Blinkit has a very hectic culture. I feel like it's one of the best culture for the juniors, and I really recommend for everyone who are passionate to be a great engineer, not just an engineer that tip the task, but feel like wanted to solve something, wanted to work with the real problems and high tech, who are passionate about tech. Blinkit is one of the best company for that. Great. Cool. Uh, let's start from the beginning. Could you tell us a little about yourself, like your college, your background, and how your interest in tech started? Okay. First, I'll start with my introduction so that everyone know who am I. So my name is Deepika Jain, and I'm currently pursuing BTech from Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. It's in Delhi, of course. I'm from Computer Science Engineering with AI branch, and I'm currently in my fourth year, and that too in the last semester. I was placed in the month of August, and the Eternal Zomato, you could say, was the first company that came to our college. And I got placed, and it was really, dreams comes true scenario that happened on that day. It was, I can't even forget the date. It was the 6th of August, on that I got placed. So yeah, it's a beautiful journey. And my journey was not a straight journey. Like initial in the first year, I was so much passionate about okay, I'll do this, and that. But eventually, the things got worked out in a way that I was thought of. Okay, I thought like I will crack placement the second year, like Uber, Google. I didn't even think about the Indian companies to work with. I always thought about the MNC, like everyone's dream of Google, Microsoft, Uber, and about so many others as well. In my BTech journey, I faced so many rejections. Even the internship, I would say, I got three rejections: JP Morgan, Citi, and Repling, right? And it was really, shatter my self confidence, what I'm doing wrong, what's happening in my life. I never thought of be a part of this circle in my third year, especially. And I guess we'll talk about in the details when how when I will if I get a chance to share how to actually deal with so many scenarios, because I feel like I've been in a society in the first year. I've seen how much society impact to the students, how much important DSA, the development. What is the role for the startup? Which one is startup is good or the MNC is good? I can tell you because I've gone worked with the startup as well for more than 6 7 months in my third year itself. I that too within the single backend developer. I was the only backend developer there in that project. I handle it, and but still, what you have to decide the money versus skills. So there's so many learnings in my overall big tech journey that I really wanted to share using your platform. So apart from this, yeah, it's all fun with the friends and so many others, like a normal college student. I was a part of that as well. I've experienced it. So we'll share definitely about all these things in the
upcoming, discussion. So that's a small introduction about me right now. Like you tell us like you did internships as well for the 6 months Yes, more than it's about 8 months as a backend developer. as a backend developer. Like how you be the part of the like startup internship? Like if it's on campus or at off campus or through any referral. So the question that you asked that from where I got this internship, I got a referral from one of my friend whose senior was the CEO of that company. So from there I got chance to be work with that company, and there I worked completely from work from home because obviously my semester studies and everything was going on. My internship was going on campus, and they didn't allow me to go to work as a in office. Talking with Jenny, I've already told about I did back in the Node.js on that company, worked with so many tools like AWS, S3, and so many interacted with so many libraries as well. Did data mining and not data mining exactly. Basically, whatever the data we got from the survey, did some analysis, making a report, the SQL queries, the Python queries applies on it, and eventually the aim is to get the resultant sheet analysis. So it was more or less it was that only. And the another side project was the Eventoo website. Uh, that didn't came. I guess it's not working again. So maybe I cannot share that much details about that project because it's on the process. So yeah. Do you think that internship experience helped you during your Zomato interview process or any other company? Yes. So one of the strange things in during my process was I was the only girl that didn't have an MNC sort of experience in the summer vacation. I was the only one out of the people who got selected for the interview. And that took the second round, let's say. And I was not very sure, like, why would they would select me? One of the girls was in Google, JP Morgan, and so I didn't even remember the company, but one of the outstanding companies of, the India has located in India. I was like, why would I? There's a lot of competition, and also as the question that you asked for me was, does this help? Yes, it definitely helped out because I got a hands-on experience, and I also mentioned on the MNC, it was a small part of a big circle. But when you work the startup, you was a big part of a small circle. Your impact was a big. Your direct involvement of code, text, and the details you work with. It is not just about the code you are in, but it also about how this code work with the client you are working with. So even in the interview, the kind of questions they have asked me, I was able to solve it because of my experiences I had. It was not just because the preparation, but the experience that I gained through my internship, the confidence I got from the internship. Because I was so confident because everything was written by me. I know the impact, I know the backend, I know the front end, I know why I write this code, and from where I write this. Why this library? Why not that library? Why did SQL? Why not NoSQL? I know everything about that, and that comes from the once you work with closely with the project. You were completely involved with the project. Not just about the 9 to 6 job. It's about causing an impact, coming to the result, and actually taking the ownership of your work. And that to the blanket also, the ownership is also very important. Whatever you do, did you take the ownership? So yes, definitely, my internship journey has a big role to getting selected in the blanket. Uh, did you get any like full-time offer from that company? Uh, Although yes, it's not as I officially said, but as I told you, it's an off-campus opportunity. That's through the referral. I already worked with an 8 month there. I myself left the company because the saturation point has came.
ऑनेस्टली सी एज आई मेंशन कि इनिशियली में जब चीजें मुझे नहीं आती थी तो मैंने चीजें सीखी, तो देयर अ लॉट ऑफ एरिया टू लर्न विद। बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं आती थी मैंने यूट्यूब पे सीखा, मैंने चैट जीपीटी गूगल सो मैनी थिंक किया उस चीज को रीच आउट करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इवेंचुअली हो क्या रहा था, वो सर्वे था। अब एक सर्वे में को मैं थोड़ा सा टाइम लगा, फिर धीरे धीरे करते करते आई गॉट एक्सपर्ट ऑन दैट। ठीक है, तो जस्ट एक डेढ़ घंटे का काम है, करके हटाओ। एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। द रीजन बीइंग दिस प्रोजेक्ट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू सेम, माइनर चेंजेस आ गए थोड़ा सा, यूज केस में या फिर थोड़े वेरिएबल्स पे चेंजेस आ गए, टाइप थोड़ा माइनर चेंजेस, नॉट मच हार्ड फ्लो चेंजेस। यूजर बेस थोड़ा सा कम था, द यूजर था लेकिन लाइक 100 200 इवन 1000 2000 मान लो। इट वॉज नॉट ऐसे स्केलेबल वाला प्रोजेक्ट कि मैं यहाँ पे एक हाई स्केलेबल प्रोजेक्ट बना रही हूँ जहाँ पे मैं लेटेंसी, सीपीयू यूटिलाइजेशन, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे पैरामीटर्स को मुझे देखना पड़े। इट वॉज इजी टू गो विद। जस्ट लाइक अ नॉर्मल, अगर कोई भी अपना कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे हम डिप्लॉय करते हैं, तो वो भी इतना ट्रैफिक हैंडल कर लेगा, राइट। तो एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया जहाँ पे मेरा टेक्स्ट स्टैक थोड़ा सा सेचुरेट हो गया, उसके बाद मैं उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं दिखा था। एंड ऑल्सो इसमें मैंने मेंशन किया, आई वाज द ओनली बैकएंड डेवलपर, तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे पे थी, और मेरे पास कोई कैसे एक्सपीरियंस बनता नहीं जिससे मैं उसके एक्सपीरियंस से सीख पाऊँ। एट द पॉइंट यू एक्चुअली नीड समवन जो तुम्हारे एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस से चीजें तुम्हें बता सके। नोट जेस आता था या उसके रिलेटेड लाइब्रेरीज और कनेक्शंस बनाना आता था, लेकिन the people who have experienced more than like 3 to 4 years in a big company, let's say, even an experience, they know how things get work. They just don't know what the Node is something, but so many other things, system design के जो parts होते हैं, जैसे containers हो गया, माइक्रो सर्विसेज, बहुत सारी चीजें होती है बैकएंड में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अब ना लर्निंग ग्राफ नहीं बचा है। So at that point, I decided to take a step back to focus on my placement journey now. तो as I mentioned, मैंने internship के टाइम पे ही ये सब कुछ किया था। तो कहीं ना कहीं one of the reason to not to get selected in the internship also this startup, because मैं वो टाइम और एनर्जी नहीं मतलब दे पा रही थी डीएसए इतना ज्यादा, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे जाता था। मैं रात रात में कोड करे, 2 3 3 बजे तक सॉल्व करे, बहुत ऐसी चीजें, मतलब क्योंकि अगर अगले दिन मुझे वो डिप्लॉय करना है, जाके यूजर बेस जाएगा, अगर वहाँ पे कुछ फटा, ऑन द स्पॉट कैसी चीजें ठीक हो रही, कॉलेज भी जाना होता था कई बार, तो बहुत ऐसे प्रॉब्लम आती थी लाइफ में, जहाँ पे मेरी लर्निंग स्टॉप पे से रुक गई। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ज्यादा नहीं मूव कर पाऊंगी, तो मैंने कहा था कि ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, आई कैन नॉट मूव फॉरवर्ड मच। Yes, I had an opportunity to go with the full time as well because they loved my work. They, मुझे उनका प्रॉब्लम होता है, उनका कल्चर पता चल गया था। वंस यू नो द कंपनी का कल्चर, वो कैसे काम करती है, उसके गोल को समझ जाते हो। कंपनीज ऑल्सो वांट यू टू स्टे विद देम। द रीजन बीइंग इज क्योंकि उन्होंने तुम पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया होता है। दे हैव somebody who know their business, who know how to things get done। कल्चर पता है, फिट इन हो चुके हैं। इंस्टेड ऑफ कोई और इंसान को वो हायर करेंगे, तो स्टार्टिंग के 2 3 महीने से सेटल होने में लग जाएंगे, तो व्हाई वोंट दे गेट हायर देन यू वर। इवन देयर इज अ पोस्ट इन जोमेटो फ्रॉम इन द वर्ल्ड, यस। तो उसने पोस्ट लिखा था, तो इनवाइटिंग द एक्स सोमन, जो हमारे जोमेटो या ब्लिंकिट है, जिसको भी वो लीव कर चुके हैं किसी भी रीजन से, या फिर वो बेसिकली नॉट नॉट अ पार्ट ऑफ जोमेटो एनीमोर। दे वांटेड टू टेल देम कि अगर तुम जाना चाहते हो वापस for any reason, we all are welcome to them. The reason being is because they know how things get done. They've experienced Zomato. They know their code base. They know कि वो जो उनका कस्टमर है वो किस तरीके से प्रोसेस चीजें करता है। बेसिकली दे नो देयर कंपनी। अगर तुम किसी कंपनी का काम करते हो तो उसके बारे में पता चल चुका है। किसी भी नए बंदे को हायर करने से पहले तुम 10 बार सोचोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैटर करती है। So yes, I was an got an option offer from there as well, but I chose Blinkit of course. ओके, अब थोड़ा बेसिक सा रखते हैं, अब जानते हैं तुम्हारे बारे में, ठीक। Mm. लाइक हाउ वाज योर कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस, लाइक फ्रॉम द फर्स्ट ईयर टू गेट तक। Okay. The 4 years, so I'll break in the 4 parts. The first year, when you were so much excited about it, ठीक है मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस, तुम्हारे पास बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। आई वांट टू ऐड वन मोर,
लाइक तुम मुझे ऐसे बताओ आफ्टर ट्वेल्थ। Start before my college I was college, but एग्जाम नहीं हुए थे। आई गॉट अफ्रेड कि भाई कैसे ही नंबर दे देंगे ये लोग, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। नो आइडिया, बिकॉज काफी सारे रूमर्स ऐसे थे कि भाई 10th के 11th के नंबर के बेस में दे देंगे, तो ये तो अनफेयर हो गया काफी ज्यादा। 11th में भाई बच्चा का हर किसी के ग्रेड स्लो ही मतलब कम ही होते हैं, 10th में डिसेंट ही थे बस मेरे। भाई लोग तो अपने अभी के लर्निंग के हिसाब से पूछे थे। मैंने कहा छोड़ो, लेट्स स्टार्ट दी जेई प्रिपरेशन। तो मैंने उस टाइम पे जेई की प्रिपरेशन करी। दो I wanted to be an engineer only. But because of the financial things मैंने वो चीज़ नहीं करी थी, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ड्यू कर लेते हैं। एग्जाम कैंसिल हुए, डिले हुए, मैंने जेई की प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दी थी फ्रॉम पीडब्ल्यू। नंबर आया, फिर रिजल्ट आ गया, एंड देन रिजल्ट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव। एंड बट मुझे इतना था कि मुझे ना इतना बीएससी बीकॉम इन सब में इतना इंटरेस्ट नहीं था। मैंने कहा कि जर्नी स्टार्ट करी है ना, लेट्स स्टैंडर्ड, बिकॉज उस टाइम पे फाइनेंशियल पीडब्ल्यू ने वो जो फाइनेंशियल का इशू था ना, काफी बच्चों के लिए सॉल्व कर दिया था। क्योंकि उतना इतना ज्यादा पैसे नहीं दे रहे थे वो, कम पैसे में ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल थे, और पाठशाला भी खोल दी थी, वो भी इतने महंगे नहीं थे, अफोर्डेबल थे। एंड दैट टू वाज नियर बाय माय होम ओनली। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया ड्रॉप लेने का। मैंने कहा अब तो मैं ड्रॉप लूंगी, मुझे अपना जेई की चीज प्रिपरेशन करनी है, आई रियली वांटेड टू गिव इट अ ट्राई। तो वहाँ पे मैंने अपनी जेई की प्रिपरेशन तैयारी करी। शायद वो क्या था कि लेट ही शुरू हुआ था उस टाइम पे, तो 7 महीने ही जेई की प्रिपरेशन हुई थी, राइट। वहीं पे like I also met you in a PW Parsha. We were all the part of that batch only. So it was a great journey. वहाँ पे मेरे ऐसे ग्रुप सर्कल भी बन गया था, वहाँ पे हम compete करते थे एक दूसरे से, टेस्ट वगैरह होते थे, एंड everything could happen good eventually. चीजें थोड़ी सी लाइफ में प्रॉब्लम थी, बट ओवरऑल फिर मैं जेई का दो अटेम्प्ट थे, दोनों अटेम्प्ट दिए, गॉट एडमिशन दी आईजीटीयू। दैट टू मेरे पास एनएसयूटी और डीटू का ऑप्शन था, बट रीजन वाज कि वहाँ पे ब्रांच सीएससी एआई नहीं मिल रही थी, एंड आई वाज रियली पैशनेट अबाउट दिस एआई ब्रांच। कि वो सीएससी, दैट टू द सीएससी सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो इनिशियली तो डाउट रहा था क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैंने ले लिया, मैंने कहा ठीक है देखी जाएगी। ऑल्सो फाइनेंस वाला पार्ट भी था एक, भाई आईजीटी की तो फीस कंपैरेटिवली काफी कम है एनएसयूटी डीटू से। उनका शायद 8 लाख 10 तो जाते ही है, आईजीटी का ऑलमोस्ट हाफ थी। तो मैंने कहा गुड टू गो है, चलते हैं इसी में चलते हैं। तो मैंने वो ले लिया। तो उसके बाद बहुत एनर्जी पैशनेट, ठीक है भाई। मैं एडवांस के लिए एलिजिबल थी, बट मैंने एडवांस दिया नहीं था, बिकॉज आई फील लाइक उसमें अब मेरे पास एनर्जी नहीं बची, और आई वाज नॉट ऐसे प्रीटी श्योर अबाउट एडवांस थिंग, क्योंकि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर एडवांस। मैंने नहीं दिया था, और मुझे पता था कि मुझे और कोई कॉलेज में ट्राई नहीं करना है, मुझे जेईई मेंस में इतना ही करना है जितना मैं टारगेट था, आई वाज जस्ट फोकस्ड ऑन दैट ओनली। तो फिर मैंने उतना ही किया, फिर आईजीटी में एडमिशन हो गया मेरा। आईजीटी में एडमिशन होने से पहले मुझे पता था आईजीटी कोई कॉलेज में एग्जिस्ट करता है, ओके। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था आईजीटी में। हाँ, वो बाकी लोगों से मुझे पता चला कि ठीक है, एसएससी कॉलेज जो कि बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट उसकी बहुत अच्छी है, कल्चर अच्छा है, ये है वो है, छोटा कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, थोड़ा सा नेगेटिविटी थी हल्की सी, से कुछ कुछ लोगों को। तो मैं कॉलेज रिलेटेड बहुत ज्यादा पैशनेट नहीं थी, बट मैं इंजीनियर बनने वाली थी, एंड स्कोप बहुत अच्छा था, सब ब्रांच अच्छी थी, मैंने ठीक है गिव इट अ ट्राई। तो वहां पे गई, मैंने सोचा कि अब मुझे इतना कॉन्फिडेंस था खुद पे, बिकॉज आई फील लाइक कि मैंने ना अपना ये मेंस में 50% दिया है हार्डली, और वो इतना कुछ मिल गया। फिर काफी लोगों को मैंने, आई हैव सीन पीपल who was struggling with getting this marks. I was from general category also. तो ये ब्रांच से में लोगों को स्ट्रगल होती है, काफी चीजों में स्ट्रगल होती है, आई फील लाइक मैं चीजें कर सकती हूँ। जेई ने मेरे को कॉन्फिडेंस दिया था कि भाई तुम्हारी कैपेबिलिटी कितनी है। मैं अपने छोड़ते हैं ना, खुद को टेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो चांस मिला था खुद को जानने का जेई के थ्रू, आईआईटी कोचिंग में गया यार, ज्यादा टफ नहीं होगा, चिल है। और
मैं कर लूंगी, बहुत आसान है मेरे लिए। तो उससे पहले मैंने ऐसे थोड़ा सा डीएसए वगैरह शुरू कर दिया था। मेरा कॉलेज से नवंबर मिड में शुरू था, 2 महीने पहले अपना कॉलेज का कोर्स आया था, डीएसए का जावा मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे जीरो कोडिंग आती थी। आई नेवर एवर डिड कोडिंग बिफोर, एवर इन माय लाइफ। इन लाइक 12th में जो पाइथन वगैरह होता है, आई नेवर डिड दैट। कॉलेज आ गया, कॉलेज में हमारा इतना मतलब सोसाइटी का नहीं था, हमारा कॉलेज में प्लेसमेंट का वो था रेस। हमारे कॉलेज की प्लेसमेंट काफी अच्छी थी, लाइक एनएसए भी D2 के बराबर ही थी ऑलमोस्ट। बस सोसाइटी का कल्चर पे इतना ज्यादा हाइप नहीं था, बिकॉज एक छोटा सा कॉलेज था, तो काफी गवर्नमेंट, दैट टू द गवर्नमेंट, तो फैसिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी। और ऊपर से बहुत सारी ब्रांचेस ऐड कर दी थी, तो बच्चों का जो वॉल्यूम है वो भी ज्यादा आ गया था, क्राउड ज्यादा आ गया था। तो मुझे ठीक है, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे अपनी प्लेसमेंट लेनी है, थोड़ा सा चिल करना है, फ्रीडम चाहिए, जॉब चाहिए, थोड़ा बहुत फन देखेंगे, हो गया सो गया देखेंगे। तो जब सब लोग सारे सोसाइटी में हाथ पैर मार ही रहे थे, तो मैंने भी मार दिया। और मैं सेलेक्ट हुई ड्रामा सोसाइटी में। तो मैं सोचा था, मैंने कहा, ठीक है, मतलब ट्राई ट्राई में चल लेते हैं। मतलब प्रॉब्लम वो तो कोविड बैच था हमारा, जो कॉलेज था वो लेट शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग के जो सेमेस्टर थे वो जल्दी जल्दी खत्म हो रहे थे, 3 3 4 4 महीने में सब खत्म, एक एक सेमेस्टर खत्म। तो कॉलेज का पेस बहुत ज्यादा चल रहा था, सोसाइटीज भी चल रही थी। और तो उस टाइम पे हमारा, अब ये नहीं पता था कि पढ़ते कैसे उस टाइम पे, कि कॉलेज के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। एक बार ऑल्सो डीप में जाके पढ़ो, लेकिन कॉलेज के लिए नहीं पढ़ना होता था डीप में, कुछ ऐसे फिक्स क्वेश्चन होते हैं, उतना पढ़ो उतना करो उतना हो जाता है। ड्रामा में मेरा ऑलमोस्ट 6 7 महीने चले गए थे। उसके बाद फिर मुझे ड्रामा की जो प्रैक्टिस वगैरह होती है, जो थोड़ा हार्ड पार्ट होता है वहां तक मैं उनके साथ थी, बस फन वाला पार्ट आता है वहां पे मैंने बैक ऑफ कर लिया। मैंने कहा यार अब तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सेकेंड ईयर का स्टार्ट होने से पहले पहले वो उबर शी, गूगल वाले होता है ना, गूगल स्टेप उबर शी वाले अपॉर्चुनिटीज आती है, वो आना शुरू होने वाले थे, बस 1 महीने में आ जाते हैं, ऐसा कुछ था। मैंने कहा यार अब तो हार्ड टाइम हो गया, पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, ऐसा कुछ। अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट गेट सिलेक्टेड। In second मे बी आई वाज इंडिया में आते हैं ना अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स के लिए, उबर शी प्लस प्लस गूगल स्टेप और भी जो कंपनीज खिलाते हैं, तो थोड़ा तो उस रीजन की वजह से मैंने फिर सोसाइटी से बैक ऑफ कर लिया था, तो नहीं यार अब तो नहीं, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। बट नहीं हो पाया उबरशी वगैरह में भी। और ठीक से पता नहीं था, मैंने टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे उस टाइम पे, कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं दिए थे, तो मुझे पता चला कि नहीं अब तो थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा। फिर ऑल्सो सीजीपीए क्राइटेरिया भी होता है हमारे में, कि सीजीपीए मेंटेन करना, तो 8.5 का सीजीपीए मेंटेन करी थी। और इन सब चीजों में ना बहुत टाइम चला गया था, मतलब काफी लोगों ने ना क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि सीजीपीए थोड़ा सा इतना इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट करे या डीएसए करे, काफी मेरे खुद के दोस्त ऐसे क्वेश्चन पूछते थे क्या क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट करे। और मेरा ऐसा था कि मैं डेवलपमेंट भी करी थी उस टाइम पे, मैं डीएसए भी कर रही थी, मैं सीजीपीए पे भी ध्यान दे रही थी, सब कुछ पैरेलल चल रहा था। फील है कि सबकी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। मेरा ना सीजीपीए में सिर्फ उतना था कि मैं प्लेसमेंट में बैठ जाऊँ, डेवलपमेंट में इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, कि भाई प्रोजेक्ट में तुम्हारा जो इंटरेस्ट है, अगर तुम्हें ऑल्सो जिस बच्चे को टेक में इंटरेस्ट नहीं है, आई डोंट फील लाइक ज्यादा सस्टेनेबल है। बस अगर, क्योंकि एंट्री लेवल जॉब में भी अब डिमांड आ रही है टेक की, वो तुमसे मांगते हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जाना चाहिए उस चीज को लेके। और डीएसए डीएसए इसीलिए होता है कि तुम्हारे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम की तरफ किस तरीके से अप्रोच करते हो, इसमें सॉल्व करते हो, तो दैट इज वाई एवरीथिंग हैज देयर ओन एरिया। तुम किस तरीके से तुम कंपनी को प्रोवाइड करोगे, ना सब कुछ चाहिए, क्योंकि तुम्हें पैसे दे दिया और तुम उसी रोल के लिए जा रहे हो। तो मैंने डेवलपमेंट भी जल्दी शुरू कर दी थी, डीएसए भी शुरू कर दी थी, बट प्रॉब्लम वॉज कि मैं किसी में भी एक्सपर्ट नहीं थी। आई वॉज नॉट इन एक्सपर्ट इन डीएसए, आई वॉज नॉट एक्सपर्ट इन द, आई वॉज नॉट इधर द टॉपर ऑफ द क्लास। मैं सब कुछ करी थी, बट कुछ भी ढंग से मतलब डीप गाइड नहीं था। तो देन द सेकेंड ईयर केम, तो सेकेंड ईयर के क्लोज में मैंने अपने जो ये सोसाइटीज थी मैंने छोड़ दिया था, बिकॉज आई वांटेड टू फोकस ऑन अपने डीएसए वाला चीज ज्यादा, डीएसए एंड कंप्यूटर्स, जो हमारे नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क वाले सब्जेक्ट्स को, सीएस फंडामेंटल्स, सॉरी फॉर द नेम बिकॉज आई एम वेरी बैड एट नेम। तो उन सब चीजों पे स्टार्ट कर दिया था प्रिपरेशन करना। एंड यस,
तो थोड़ा सी प्रॉब्लम ये आई थी कि बहुत ऐसे फास्ट पेस था, मतलब हमें 1-2 महीने हार्डली मिल रहा था। हमारा सेकेंड ईयर के एंड तक आते थे वो उबरशी और गूगल स्टेप आने लग गई थी। उसके 3-4 महीने बाद हमारा इंटर्नशिप सीजन भी शुरू हो गया था और बहुत कम टाइम मिल रहा था। प्लस मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई थी जो मैंने अपने ऑफ ऑफ कैंपस अप्लाई किया था, तब फ्रॉम रेफरल के थ्रू जो मुझे मिला था। तो वहाँ पे मेरे को जो टास्क असाइन होते थे उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम सॉल्व करनी हुई, मतलब बहुत ज्यादा डेव भी मेरा हैवी हो गया था। डेव हैवी चल रहा था, डीएसए भी डिमांड भी तो चल रहा था, प्लस मेरी सेमेस्टर्स की स्टडी चल रही थी। और अनदर बिग प्रॉब्लम वाज कि मैं डे स्कॉलर थी, मैं दिल्ली से थी, तो मेरे को हॉस्टल एलोकेट नहीं हुआ था और आई हैव टू ट्रेवल फ्रॉम लाइक 1.5 घंटा फ्रॉम वन साइड मेट्रो के थ्रू। तो एनर्जी उसमें भी ड्रेन होती थी और बहुत सी चीजें चलती रहती थी। तो इन सब सिनेरियो में मेरा एक लर्निंग था कि यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, कि भाई तुम्हारे अंदर की, तुम्हें हो सकता है कि अभी रिजल्ट ना दिख रहे हो सकता है कि तुम्हारे पास रिजेक्शन बहुत ज्यादा है और तुम्हारे पास तुम्हें आसपास के लोग दिखेंगे कि भाई इसने ये भी कर लिया, भाई उसने वो भी कर लिया, कोई हैकाथॉन जीत रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। बट यू इनर सेल्फ यू नो हाउ कैपेबल यू आर। एज आई मेंशन बिफोर कि जे के थ्रू, प्रिपरेशन के थ्रू आई गॉट टू नो कि भाई मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा ऐसे स्मार्ट माइंड से मिली थी एंड आई वॉज एबल टू स्टैंड समवेयर। स्कूल में आई डेंट हैव सो मच कॉन्फिडेंस, बट दैट स्लोली स्लोली जब मैं चीजें कम्पीट करना शुरू किया, चीजें में घुसना शुरू किया, तो आई फिगर इट आउट माई सेल्फ कि भाई आई एम गुड एट स्टडीज, आई आई लव स्टडीज। एंड चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करना, वो कंपटीशन में आना और वो खुद को टेस्ट करने वाली चीजें मुझे बहुत पसंद थी। दो चीजें बहुत ज्यादा हार्ड होने हो गई थी, मल्टीपल चीजें पैरेलल एक साथ पता चल रही थी, किसी भी चीज को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। यू कैन नॉट डिच योर कॉलेज, यू कैन नॉट डिच योर इंटर्नशिप, नीदर डिच योर इंटर्नशिप की जो डिमांड थी सीएस फंडामेंटल एंड डीएसए, सब कुछ चल रहा है। प्लस तुम्हारा जो टाइम, क्योंकि फिक्स टाइम होता है, हर किसी का 24 घंटे होते हैं, उसमें तुम्हारा आना जाना, फैमिली के साथ तो है ना बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता। तो तुम हॉस्टल में होते हो तो तुम्हारी काफी चीजें मैनेज हो जाती है। यू हैव योर फ्रेंड्स, जो तुम सबका सेम माइंडसेट होता है, सेम चीजें कर रहे हो, तो बहुत एज होता है हॉस्टलर्स के पास, आने जाने का टाइम बच जाता है, बहुत सारी चीज होती है। तो इन सब चीजों में द ओनली थिंग दैट आई हैड वाज माय इनर पावर वाला चीज, कि भाई ठीक है दीपिका, यू नो कि तू ये कर सकती है, यू नो कि ये इतना हार्ड नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग। बट जैसा भी रिजल्ट इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही थर्ड ईयर आना शुरू हुआ, इंटर्नशिप मेरी शुरू हुई, वो एक के बाद एक कंपनी आ रही है। मेरे फर्स्ट कंपनी है रिपलिंग। रिपलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड कंपनी। ऑल्सो प्रॉब्लम मैं ऑनेस्टली ये भी थी, आई शुड नॉट से, बट एवरीवन नोज कि चीटिंग होती है, ओएस में चीटिंग होती है। समवेयर में कोई ज्यादा कोई कम, कहीं ना कहीं से करता है। एंड आई फिगर्ड आउट कि आई डिडंट हैव एन इनफ कॉन्टेक्ट। मेरे ना हॉस्टलर्स वगैरह जो होते हैं, दे हैव अ गुड कॉन्टेक्ट अबाउट ऑल दिस थिंग्स, दे नो। जब वो क्लियर होता है, एक पर लग गए तो दूसरे पे वो हेल्प आउट कर रहा है। मैं और मेरे सारे फ्रेंड डे स्कॉलर्स थे, आई हैड अ स्मॉल ग्रुप ओनली। तो आई फिगर्ड आउट कि जहाँ पे जब ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, जहाँ पे तुम्हें ऑनलाइन ओए देना होता है, घर से दे रहे हो तुम, वहां पे तो बहुत कम चांस होता है कि तुम ओए में गेट सिलेक्टेड हो रही हो। लेकिन जहाँ पे वो, एक बार मुझे याद है जो फर्स्ट रिपलिंग का था वो ऑफलाइन ओए था, आई वेंट देयर, मुझे ना बड़ा इजीली हो गया था। एंड आई फिगर इट आउट कि जो लड़कियां ऑलरेडी काफी सारे ओए में उनका नाम आ रहा था, दे डिडंट एबल टू क्रैक दिस बेसिक क्वेश्चंस। मेरा भाई ये तो गलत है। ठीक है दीपिका, यू आर इन द राइट पाथ, बट ऑल यू हैड जस्ट वन गेट चांस, तुम्हें वो एक चांस चाहिए। रिपलिंग का मेरा पहला एचआर का राउंड हुआ था एंड द पर्सन वाज इम्प्रेस्ड बाय मी। आई शुड नॉट, मतलब मेरा तो ऐसा था कि वो फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है, वो एचआर ही था ऑलमोस्ट। उसने तो ऐसे टेक क्वेश्चन ही पूछे थे। वो उस एनर्जी फील है कि जिस कॉन्फिडेंस से मैं चीजें कंप्यूट कर रही थी, दो मुझे सब चीजें नहीं आती थी। मेरी इंटर्नशिप को शुरू हुए 20-25 दिन ही हुए थे तब मेरे रिप्लिंग का वो आया था। फर्स्ट राउंड मेरा क्लियर हो गया था। सेकेंड राउंड में प्रॉब्लम ये आई थी कि वो मेरे ऑनलाइन इंटरव्यू था और वहाँ पे मेरा कॉलेज में बहुत बकवास सिनेरियो ये है कि नेटवर्क भी प्रोवाइड नहीं करते वो लोग ढंग से, नेटवर्क इश्यूज था। तो काफी ज्यादा ऐसा होता था, कैन यू रिपीट योर सेल्फ, नॉट एबल टू कन्वे थिंग्स आउट प्रॉपरली। ऑफलाइन होने का फायदा ये होता है कि तुम्हारे पास पेन और पेपर होता है, तुम इजिली चीजें समझा पाते हो और नेटवर्क डिपेंडेंसी नहीं होती है। तो वो मेरा सेकंड राउंड की वजह से थोड़ा सा
प्रॉब्लम आ गया था। फिर रिपलिंग था, मॉर्गन स्टैनली था, ये सब really। तो ऐसे कंपनी था कि हाँ सिटी, ओके, सिटी वॉज समथिंग वेरी, बहुत ज्यादा वो हुआ था उसमें प्रॉब्लम। उस केस में तो ये होता है कि मेरे सारे ऑलमोस्ट राउंड क्लियर हुए थे। मेरे को लास्ट में ऐसे डाल देते कि इफ एनी ऑफ देम गर्ल रिजेक्ट द, यू नो, डिनाइड टू टेक ऑफर, देन आई विल गेट द ऑफर। आई वाज नॉट रिजेक्टेड, आई वाज ऐसे लटका दिया गया मेरे को बीच में, लास्ट राउंड पे आते आते। तो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि दीपिका यू आर गुड एट टेक्निकल स्टफ। एंड एज आई मेंशन कि मैंने सोसाइटी बहुत जल्दी छोड़ दी थी, डिडंट एबल टू पार्टिसिपेट मच। तो और प्लस मेरा जो डे स्कॉलर, तो डे स्कॉलर्स में तुम्हारा सोसाइटी हेल्थ मेंटेन करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही होती थी। अगर तुम्हारे पास वो एंथुजियाज्म नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते। और मैं बहुत ज्यादा ऐसे टेकी टाइप की लड़की थी स्टार्टिंग से, तो आई फिगर आउट कि टेक्निकल राउंड्स हो रहे हैं और मैं चीजें थोड़ा सा बता पा रही हूँ टेक्निकल के टर्म्स से, बट व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन, बिकॉज इंटरव्यू इज नॉट जस्ट अबाउट कि तुम्हें चीज सॉल्व करनी आती है, तुमने कर दिया हो गया। इट शुड बी कम्युनिकेट, तुमसे कम्युनिकेट करना आना चाहिए प्रॉपरली। तो सिटी वॉज समथिंग जहाँ पे मुझे पता चला है कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिर मैंने अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा वर्क करना शुरू किया। तो ये सब चीजें ऐसी थी कि धीरे धीरे मेरे को जो चीजें मुझे रियलाइज हो रही है कि टिपिकल यहाँ पे तुम्हारी ये प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू वर्क विद दैट एरियाज पे। तो यहाँ पे मैं जूनियर्स को ये रिकमेंडेशन देना चाहूंगी कि जज योर सेल्फ, फिगर आउट वेयर यू आर लैकिंग, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर लिमिट्स। डू नॉट थिंक कि भाई इसको पाने के लिए मुझे कितना करना पड़ रहा है बस फॉर्मेलिटी के लिए। बिकॉज अगर तुम टेक में हो, तुम्हें एसडीए बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो तुम्हें डीएसए करना है, तुम्हें सीएस फंडामेंटल्स करना है, तुम्हें कम्युनिकेशन में करना है, तुम्हें कॉन्फिडेंस लाना है। सो बहुत सारी चीजें तुम्हें एक साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। विदाउट एनी इंटरेस्ट यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट इंटरेस्ट आना चाहिए। सेकंड, तुम्हें टेस्ट योर सेल्फ की अगर तुम्हें ठीक है इंटरेस्ट है, अब किसी तरीके से प्रोसीड करना है, टेस्ट योर सेल्फ कि तुम अभी किस लेवल पे हो, और अपने आप से सच बोलो, अपने आप से झूठ बोल के नहीं होगा। अगर तुम लीड कोड के क्वेश्चंस कर रहे हो 100 200 यूजिंग चैट जीपीटी और कहीं से बस कॉपी किया कोड किया, फायदा नहीं है। इवेंचुअली तुम किसी कंपनी में बैठ जाओगे, तो वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। एंड अगर मैं उसका आंसर करना पड़े कि भाई डेव या टेक में किसको चूज, डेव या डी सॉरी डेव या फिर डीएसए किस पे ज्यादा फोकस करूँ, ऑलरेडी मेंशन भाई दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, पहली चीजें पॉसिबल है। रोज के 2 या 3 या एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट तुम्हें करना पड़ेगा डीएसए का। डेव का तुम देख सकते हो कि तुम्हारे किस एरिया में इंटरेस्ट आ रहा है। आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम्हारे एआई वगैरह का इंटरेस्ट है दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, बट अगर तुम्हारे ऐसा कोई कोर चीज नहीं है इंटरेस्ट का, तो यू कैन स्टार्ट विद बैकएंड स्टफ, बैकएंड डेवलपमेंट वाला चीज। बिकॉज ज्यादातर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं वो सिस्टम डिजाइन एक बहुत हैवी आर्किटेक्चर बना रहे होते हैं, इवेंचुअली बैकएंड का ही सारा खेल हो रहा होता है। तो अगर तुम्हें उस एरिया में एज ए इंजीनियर इंटरेस्ट है, तुम उसमें जा सकते हो। गुड टू गो है, इजी टू अंडरस्टैंड है, तुम्हें स्केलेबिलिटी बहुत सारी चीजें की टर्म्स में पता चलेगा, और वो हार्ड भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो एआई और एमएल या डीप लर्निंग है ना, ठीक है स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट जल्दी हो रहा है, सारी लाइब्रेरीज पढ़ी है, तुम उसे इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन अगर तुम उसके डेप्थ में जाओगे ना, वो बहुत डिफिकल्ट है। उसके जो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है, उसके नेटवर्क्स है, उसके बहुत सारी मतलब मॉडल्स की वैरायटीज एंड वर्जन इतने ज्यादा है, तो सिलेक्ट की कौन सा वर्जन किस में अच्छा है कैसे नहीं है, डेटा सेट बहुत ज्यादा क्वालिटी में, प्लस वो तुम्हारा पीसी पे भी डिपेंड करता है। तुम्हें तो अगर ट्रेनिंग करनी है तो तुम्हारे पास जीपीयू होना चाहिए, फिर तुम्हें डीप लर्निंग में जाना है। तो इस वजह से अगर तुम एआई वगैरह पार्ट में देखो तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे तुम्हें जाने के लिए, लेकिन अगर तुम्हें डेवलपमेंट वगैरह करना है, आई वुड से दैट इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस मेरे अकॉर्डिंग। आई रियली लव दिस कि हाँ, अगर तुम्हें पता चलेगा तुम्हें इंटरेस्ट नहीं आया तो इवेंचुअली चेंज कर दो। ऑल आई वांट टू से अपने आप से झूठ मत बोलो। कितना ही बेकार झूठ है, कितना ही मतलब हार्ड टू डाइजेस्ट है, ट्रुथफुल योरसेल्फ, स्टे ट्रुथ ओनली। बाहर तुम्हें जो दिखाना है दिखाओ, लेकिन जो तुम अंदर से एग्जामिन कर रहे हो तो उस पर तुम्हें थोड़ा सच होना चाहिए। तो दैट इज द माई सेकेंड या थर्ड ईयर का लर्निंग आई वुड से, कि मेरे रिजेक्शन आ रहे थे। मेरे दोस्त जो इतने अच्छे नहीं थे डीएस ज्यादा, मैं इतने करीब ही नहीं थी। हमारा ऐसे 5 लोगों का ग्रुप था, 2 of them was not selected also they did hard work। मतलब अगर मैं से पैरामीटर करूंगी, अगर मैं से पैरामीटर जज करूँ, दे हैव गुड लर्निंग कैपेबिलिटी, मतलब सारे इंटेलिजेंट तो थे ऑफ कोर्स, कम मेहनत भी करी थी अपने सबने अपने अपने, और एक लक फैक्टर बहुत जल्दी आ जाता है।
कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई लक तो है। लक करो तो मैं पता चल जाएगा इंटर्नशिप अपने प्लेसमेंट के टाइम पे कि इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट टेक्निकल और योर स्किल्स बट अ लक फैक्टर्स एज वेल, until unless you are completely outstanding person कि भाई इजी टू गो है सब कुछ। अगर तुम ऐसे मॉडरेट हो, तुमने बहुत सारी चीजें अप डाउन देखी है, एक एवरेज स्टूडेंट हो कॉलेज में, तो तुम्हारे कहीं ना कहीं लक फैक्टर मेंटेन करेगा। तो डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड, बिकॉज लक को भी एक ना एक दिन हारना पड़ता ही है। इन नो टूवर्ड्स तुम हार्ड वर्क करते हो तो मैंने पांच, हमारे से पांच लोगों का ग्रुप था, टू गॉट सिलेक्टेड इवेंचुअली। एक तो बहुत से एंड में जाके सिलेक्ट होती है, सर्विस में है, एंड वन इज इन वीजा। वेरी हैप्पी फॉर देम, वेरी मोटिवेटेड। और उनसे ये पता चला कि अगर ये लोग कर सकते तो मैं तो आराम, मैं भी कर सकता हूँ, आराम से हो जाएगा। आई हैव सीन देम, दे आर फ्रेंड्स ऑफ माइन, एंड आई कैन फील कि भाई कितने कैपेबिलिटी कैसे क्या है। तो इफ दे कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। बट आ जाता है क्या, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, डिमोटिवेशन आ रहा है, करती हूँ हो नहीं रहा, सबका हो रहा है, इसका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है। मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है। और रियलिटी को एक्सेप्ट करने से, जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना बढ़िया है। तो तुम अपनी, हाँ, तो मैंने तुम्हें बताया था इंटर्नशिप, मुझे पता चला कि यार जब मेरी इंटर्नशिप थी, तो मेरा जो इंटर्नशिप का सीजन चल रहा था, उसमें मेरी एक इंटर्नशिप भी चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मैंने बहुत टाइम एनर्जी चाह रहा था। वहां से मैंने जो स्किल्स एक्वायर करनी थी कर ली। अब अगर काफी सारे लोग, हो सकता है वो सोचेंगे कि यार इंटर्नशिप है, इसमें एफटी तो मिल जाएगा, इधर ही टिक जाते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ मेरा। नो, यू शुड से नो। तुम्हें तुम्हारी प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। जब मुझे पता चला, एक सेचुरेशन आ गया, पैसे यहाँ पे इतने मैटर नहीं करते हैं, मुझे अपना ये जो वो है, ये रिस्क लेना पड़ेगा टू नॉट से नो टू दिस कंपनी एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन योरसेल्फ कंप्लीटली, ताकि तुम एक प्लेसमेंट क्रैक कर पाओ। तो वो तब वो छुट्टी होती है जहाँ पे सब लोग अपनी इंटर्नशिप में गए थे, और हमें इस 2 ढाई महीने का टाइम मिला था वहाँ पे। आई डिड ऐसे कम्प्लीटली डीएसए, हैवी डीएसए कर रही थी, सब कुछ रिविजन्स किए थे, सारे रिविजन, सीएस फंडामेंटल कर दिया, फिर उसके बाद शीट्स लगाई बहुत सारी, और डेवलपमेंट भी किया ऑफ कोर्स। तुम्हारे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट होना चाहिए अपने शीट में, रेज्यूमे में, जिसके बारे में तुम कॉन्फिडेंट हो, जिसके बारे में तुम बोल सको, तुम्हें पता होना चाहिए क्यों, क्या, कैसे, क्या, ऊपर से नीचे सब तक अच्छे से। तो मेरे पास वो था, मैंने एक हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाया था, एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम था, उस पे मैंने पूरा काम किया था, तो आई नो एवरीथिंग अबाउट इट, एंड दैट हेल्प्स इन माय सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट राउंड ऑफ जोमेटो। तो यह, तो जैसे ही वो जोमेटो आई, जोमेटो का बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने मेंशन किया था, चीटिंग होती है। आई प्रेफर कि ऑफलाइन वही होना चाहिए, ऑफलाइन इंटरव्यूज होने चाहिए, ज्यादा बेस्ट रहता है। तो बेस्ट पार्ट ये हुआ कि भाई फर्स्ट कंपनी आई है, बढ़िया सा पैकेज लेके आई है, और ऑफलाइन होगा, बेस्ट। आई एम लाइक, ये मेरी टाइप की कंपनी है। तो क्योंकि आई फील लाइक कि मुझे पता है मैं कर सकती हूँ, बट मैं चीटिंग में इतना नहीं कर पाऊंगी। काफी लोग चीटिंग करते हैं, बहुत जल्दी करते थे, उतना स्कोप नहीं है मेरा। तो मैं हैप्पी हैप्पी थी, जोमेटो आई जिस दिन, ऑफलाइन था। और बहुत उसकी भी बहुत ऐसी स्टोरी है, बट ऐसे समराइज करूँ तो यही था कि जोमेटो आई, ऑफलाइन ओए दिया, वॉज नॉट कॉन्फिडेंट अगेन कि भाई मेरा ओए में सिलेक्ट होगा, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन नहीं करी थी उससे। मैंने, एक होता है ना कि कंपनी आई है, उसे एक दूसरे पहले तो बहुत हैवी प्रिपरेशन कर रहे हो, मेरी जीरो प्रिपरेशन थी। द रीजन बीइंग वाज कि उन्होंने ऑफलाइन कुछ ऐसे पहले रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट राउंड था उनका, रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किया, 200 कुछ बच्चे थे। काफी सारे बच्चे उस टाइम पे बैंगलोर में थे, बैंगलोर हैदराबाद वगैरह, तो वो लोग नहीं आ सकते थे। भाई मेरे दिमाग में आया कि भाई नहीं हो पाएगा, तो समवेयर आई डोंट वांटेड टू गो देयर, एंड जस्ट सेड कि भाई मैं भी नहीं आ पाऊंगी, मुझे नहीं जाना ऑफलाइन ओए देने। तो उन्होंने नाम से लिस्ट बता दिया था कि ठीक है, जो ऑफलाइन ओए देने नहीं जाएंगे, हमने और कंसिडर नहीं कर रहे बेसिकली। बट इवेंचुअली फिर मुझे वहां पे जाना पड़ा, तो फिर ऑनलाइन ओए, हम सॉरी ऑनलाइन कह रही हूँ, ऑन ऑफ कैंपस में जाके मैंने ओए दिया। और इन सब चीजों में मैंने ढंग से प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी थी, तो प्रिपरेशन थी, मैं 2 ढाई महीने में जो प्रिपरेशन करी थी वही लर्निंग थी मेरी। मैं ऐसे रैंडमली गई, दे दिया ओए, देकर आ गई। मेरा प्लान कुछ और था, मेरा शाम को कोई दूसरे ओए थे, 7-6 बजे, वन स्टॉप पे मैंने अप्लाई वगैरह करा था। मैंने हर जगह अप्लाई करी थी,
थी तब मैं प्रिपरेशन की तैयारी करती, मैं जितना भी कोई भी कंपनी आती थी, छोटी हो बड़ी हो, चाहे कोई भी टेस्ट हो, चाहे कोई कंपटीशन हो, मैं अप्लाई करती ताकि मैं अपने आप को इवेलुएट कर पाऊँ कहाँ पे मेरी कमी जा रही है। आई हैव टू फेस इट। तो फिर वो चीजें मैंने करनी शुरू कर दी थी। क्या जितना रिजेक्शन देखूंगी देखूंगी, बट आई हैव टू टेस्ट माई सेल्फ, कम्प्लीटली ट्राई करना है। तो ओए दे दिया। ओए के बाद अपने फ्रेंड के पास गई, वहाँ पे मस्त खाना वाना खा रही। उसके बाद मुझे कुछ फाइल वगैरह भी बनाना था, कुछ तो ऐसा कुछ काम था। तो मेरा मेरा टारगेट ये था कि ठीक है ओए देना, उसके बाद मेरे को XYZ काम है। तो ओए देने के 1 घंटे बाद मेरे पास कॉल आता है, दीपिका यू गॉट सिलेक्टेड टू कम फॉर इंटरव्यू राइट नाउ। मैं तो प्रिपेयर भी नहीं थी। पता है, जीरो प्रिपरेशन, जीरो होप। उसका भी वही हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट लीग तैयारी करने, तुम्हें पता होता है कि तुम सिलेक्ट हो गया नहीं होगी। मैंने डिसेंट डिसेंट किया था, फिर मैं सिलेक्ट हो गई। फिर मैं थोड़ी एंशियस हो रही कि यार शिट, मैं तो इंट्रोडक्शन तक भी रेडी नहीं किया है, मैं क्या करूँ। तो काफी लोगों का होता है ना, इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं, उनका टिप्स में होता है तो ठीक है इंट्रोडक्शन दिया और हो गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर। मेरी जो फ्रेंड है सर्विस नाउ में जो थी, उसका FT का वो आ गया था। नहीं होता ना इंटर्नशिप करने के बाद तो तुम्हारे पास PTO मिलता है, उसका वो उसी दिन आ गया था। मैंने उससे बात, उसका कॉल वॉल हुआ, उसने मेरे को थोड़ा मोटिवेट किया कि भाई हो जाएगा, थोड़ा सा काम डाउन, जितना होता है उतना उतना कर। तो मैं बहुत रो फॉर्म में गई थी, अपने कंप्लीट रो फॉर्म में गई थी। तो ऐसे फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में क्या पूछा गया। इंटरव्यू फर्स्ट ऐसा था कि मैं बहुत, अब देखो यहाँ पे मुझे नहीं पता ये एडवांटेज है, मतलब प्लस बोलूँ या नेगेटिव बोलूँ, मेरे पास जीरो होप थी। तो मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये कंपनी मेरे को लेके जाएगी। मेरे को ये भी याद नहीं था कि इनका CTC कितना है, मेरे को कुछ नहीं पता है। मैंने कंपनी के बारे में नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करा। ऑल आई वॉज, तो मैं जो हूँ मैं वो प्रेजेंट कर रही हूँ, खत्म कहानी। तो मैं वहां पे गई, मैंने जितना पूछा मैं नॉर्मली बताया, बहुत काम होके बताया, क्योंकि एंशियस नहीं हूँ मैं अब। मेरे पास इतना वो नहीं है, हो पे एक्सपेक्टेशन नहीं है। मुझे पता है कि ठीक है होगी, लेट्स गिव इट योर बेस्ट। एंड द कंपटीशन वाज वेरी हार्ड एट दैट टाइम। तो कंपटीशन बहुत हाई था, मुझे दिख रहा था कि मेरे जो आसपास की जो 15-20 लड़कियां जो सिलेक्ट हुई है फर्स्ट राउंड के लिए भी, उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, उन्होंने काफी अच्छी कंपनी क्रैक करी है, एंड डेफिनेटली वेरी गुड एट DSA, तभी उन्होंने क्रैक करा होगा फॉर श्योर। तो मैं ठीक है देखा जाएगा। तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे थे ना, मतलब उस पॉइंट में ये हुआ था कि बिकॉज ऑफ हैविंग जीरो प्रेशर, मैं क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देख रही थी सिर्फ, कि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर तुम कैसे सोच के दोगे। तो आई फील लाइक अ फ्रेंड कि ठीक है मेरी फ्रेंड ने से एक डाउट पूछ लिया, तो या फिर उस तरीके से आंसर कर दिया, तो उस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, नहीं आ रहा है तो उस तरीके से बता दिया, थोड़ा सा फॉर्मल वे में, बस। तो मैंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ऐसे। मेरा जो प्रोजेक्ट था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे हम शेड्यूलिंग कर रहे थे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट की, कि ठीक है पेशेंट बुक कर रहे हैं स्लॉट्स। तो वहाँ पे ये होता है कि अगर कोई पेशेंट ने 9 to 10 लैब से स्लॉट बुक किया तो कोई दूसरा पेशेंट स्लॉट बुक नहीं करना चाहिए। तो उसका पूरा थोड़ा सा बताया था किस तरीके से फ्लो जाएगा, कैसे करेंगे, डेटाबेस का आर्किटेक्चर बताया था। डेटाबेस में भी तुम कौन कौन से कॉलम्स रखोगे, कितने टेबल्स होंगे, क्यों होंगे, कौन से टाइप का डेटाबेस होगा, SQL होगा, NoSQL होगा, रीजन क्या होगा उसका। तो वो सारा डिस्कशन हुआ था। उसके बाद मेरा एक DSA का क्वेश्चन हुआ था जो कि हैश मैप रिलेटेड था। हैश मैप वो एक क्वेश्चन था, उसकी मैं वेराइटीज चेंज कर दी थी मैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब आई वुड से कि वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। तो इतना ही हुआ था, इंट्रोडक्शन वगैरह बेसिक उसमें। जो तुम्हें सिस्टम जो मेरा था ना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, उसी में से CS फंडामेंटल्स भी रिलेटेड सिनेरियोस पूछ लिए गए थे, साथ में सिस्टम मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल्स, जो कंप्यूटर CS फंडामेंटल्स है, उसके जो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़े हैं वो मैं कैसे अप्लाई कर पा रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, मोस्ट रिलेटेड टू डेटाबेस और oops related questions थे। DBMS and oops was more asked from that interview। फिर मेरे पास ऐसा था कि ठीक है डिसेंट डिसेंट गया है, ठीक है। थोड़ा सा तो था कि थोड़ा हल्का हल्का डर लग रहा है, बट ठीक है। फिर फिर ये हुआ कि सेकेंड राउंड का आया कि ठीक है सेकेंड राउंड के लिए 5 लड़की सिलेक्ट हुई है। तो 15-18 बच्चों में से 5 लड़कियां हो गई। तो और कंपटीशन, एक लड़की थी वहां पे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट दिख रही थी, तो सुबह मेरी फट रही थी उसे देख के। मैंने कहा भाई कोई स्कोप नहीं है। कूल। तो मैं ठीक है, ऑल आई डिड वाज कि टू शो माई सेल्फ हु आई एम, व्हाट आई नो, व्हाट आई डोंट नो, ऑल आई जस्ट नीड टू पुट माई सेल्फ। तुमने पढ़ा है, मैंने अपनी मेहनत करी थी, ऐसे मेंशन में 2-2.5 महीने बहुत अच्छे से मेहनत कर रही थी, कंटिन्यूस करी थी, एफर्ट्स पूरे डाल रही थी, एक ही जगह पे फोकस होके करा था इस बार।
ये सब क्या था, मेरी जो लर्निंग्स थी फ्रॉम माय थर्ड ईयर, फ्रॉम माय फर्स्ट ईयर, फ्रॉम माय सेकेंड ईयर, हर ईयर में मैंने खुद को करेक्ट किया। मुझे पता चला दीपिका ये तो रॉन्ग पाथ है, उसको ठीक करा। फिर पता चला कि ठीक है, इस चीज में तेरा ये गलत पार्ट निकला, उसको ठीक किया। फिर थर्ड ईयर में कुछ गलत पार्ट किया, उसको ठीक किया। तो तुम्हें अपने आप को एग्जामिन करना है, कहाँ पे तुम लैग कर रहे हो उस पर वर्क करना है। और लैग करते टाइम अगर तुम्हें पता चलता है ये इसमें तुम अच्छे हो तो उसको और पावरफुल करना है। आई वॉज न्यू कि मैं डीएसए में अच्छी जा रही हूँ, डीएसए में सॉल्व कर पा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे डीएसए साइड हटाना है। आई हैव टू कंटिन्यू दिस डीएसए मोर, ज्यादा फोकस के साथ भी, ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भी। जो चीजें नहीं आती जहाँ पे तुम लैग कर सकते हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग एज सुन एज यू गेट टू नो अबाउट इट। उसके बाद सेकेंड राउंड हुआ। सेकेंड राउंड में मेरे से पूछा गया था दो डीएसए क्वेश्चन, दैट टू विद एक था रेट लिमिट वाला क्वेश्चन। इसमें तुम्हें जो रेट लिमिट, जैसे एपीआई की कॉल आती है, तो लेट्स से मैं कहते पर सेकंड को इतनी ही कॉल्स लेनी है, बाकी सारी एपीआई की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है। क्योंकि वो डीडोस अटैक वगैरह होते हैं, एकदम से कॉल आते हैं तो पूरा हैंग हो जाता है, तो उस चीज को भी मैनेज करना है। उसमें तुम्हारा सेमाफोर्स होते हैं, सेमाफोर्स आई थिंक लॉकिंग होती है ना सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर्स होते हैं जहाँ पे तुम उसे लॉक कर लेते हो, फिर वो तब तक वो रिलीज नहीं होता, यू कैन नॉट डू एनी ऑपरेशन ऑन दैट। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसा मैंने उसमें लगाया था। और एक था हमारा मर्ज्ड के सॉर्टेड एरे। प्रॉब्लम वो कि वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मर्ज के एरे, तुम्हारे पास के सॉर्टेड एरे है, उसको तुम्हें मर्ज करना है, मतलब उसे मर्ज करके सॉर्ट करना है। तो प्रॉब्लम मुझे बताया में कुछ रटा वटा नहीं था। मेरे दिमाग में ना वो क्वेश्चन, मतलब मैंने कभी करा होगा, याद भी नहीं। हाँ तो फेमस उस टाइम पे क्लिक नहीं कर रहा था, वो क्लिक नहीं कर रहा था। मेरा पता नहीं यार कैसे होगा। मुझे अगर तुम्हारे पास दो सॉर्टेड एरे है तो पता ही है नॉर्मल स्टेप से, लेकिन मैं के में लग गई, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। तो वहां पे मैं थोड़ी सी ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिमोटिवेट होना शुरू कर दी। बट मैं कहीं पे क्यू का, प्रायोरिटी क्यू का मैंने यूज किया, और फिर वहां पे क्लिक किया। उसके बाद तो फिर मैंने सब कुछ सॉल्व कर दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी की थी, उसमें से चेंजेस भी बताए थे कुछ कुछ, कि इस क्वेश्चन में अगर ये वाले चेंज कर दो तो बताओ कैसा क्या होगा। तो मतलब ये सब ये मैंने पैटर्न देखा है कि वो एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन में पहले थोड़ा सा इजियर इजियर वर्जन होगा, फिर उसका थोड़ा सा मीडियम वर्जन होगा, फिर हार्डर वर्जन होगा। इसे कॉन्टेस्ट में भी तुम देखते होंगे, एक मतलब शायद गेट कोडिंग क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में होता है, सेम क्वेश्चंस होते हैं और उसमें कुछ ट्रिक्स लगाया तो उसका क्या कहते हैं, मतलब क्वेश्चन सेम होता है, वर्जन सेम होता है, बट डिफिकल्टी लेवल थोड़ी लाइट थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, डिफिकल्टी लेवल चेंज हो जाता है। कि भाई उसमें या तो वो वाला वो सिचुएशन आ जाएगी, टाइम लिमिट एरर आ जाएगा। तो वैसी चीजें थी, तो उसको ऑप्टिमाइज वर्जन और ज्यादा करना पड़ता है। तो वैसे ही मेरा केस सॉर्टेड एरे में भी था, सारे सिनेरियो, स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेंजेस करके तो क्या कोड चेंज होगा, ये दो क्वेश्चंस पे हमारे बार डिस्कशन हुआ था। और उसी के अंदर मेरा ऑन द प्रोसेसिंग सीएस फंडामेंटल पे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, जिसमें अब मोर फोकस था ऑपरेटिंग सिस्टम में, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अगेन डीबीएमएस। बस इतना ही था। उसके बाद तो फिर उसने लाइक ठीक है सॉर्टेड है इतना, और जो मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है उससे पूछ लिया था, प्रोजेक्ट वगैरह तो थोड़ा बहुत उससे पूछ लिया था, फिर वो डन था। फिर आता है 5 मिनट पे आता है एचआर राउंड। एचआर राउंड तो सिर्फ मेरा ही हुआ था, ओके, मतलब 5 में से सिर्फ एक का हुआ। सिर्फ मेरा ही हुआ था। तो मतलब ऐसा है कि ठीक है, मतलब सब लोगों का ना थोड़ा मूड सैड सैड सा लग रहा था। मैंने कहा मेरा तो कुछ ज्यादा खुश भी नहीं था और ज्यादा सैड भी नहीं था, मेरा डिसेंट डिसेंट था। तो ठीक है, फुल फेयर इनफ। तो एकदम से आता है कि दीपिका तुम्हारा एक नेक्स्ट राउंड होगा एचआर का, वो नॉर्मल डिस्कशन है, ऐसा कुछ प्रॉपर राउंड नहीं है, तो तुमसे बस बात करेंगे बस। और उसका और वो मेरा शायद फर्स्ट ऐसे इनफॉर्मल एचआर राउंड था, जिसमें शी सेड कि भाई रटा हुआ आंसर मत देना। आती उसने बोला कि मेरे पास भी रटे रटाए आंसर नहीं चाहिए, कि तुम पढ़कर आए हो वही स्टैंडर्ड आंसर के रिप्लाई दे रहे हो। एंड आई सेड मैंने पढ़ा भी नहीं है, Okay. आई एम रो हियर, कंप्लीटली रो। फिर भी हमने इतने नॉर्मली ऐसे कॉन्वर्सेशन किया, जैसे कि मी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, इतने ही नॉर्मल, ऐसे इतना ही ट्रुथफुल और इतनी ही नेचुरलिटी के साथ बात करी। जैसे कि उसका मुझे अभी भी याद है, उसने मुझसे पूछा था इफ यू कैन चेंज समथिंग इन दिस जर्नी ऑफ योर बीटेक, तुमसे क्या चेंज करोगे। मैंने सोचने लग गई थोड़ा सा।
तुम्हें पता चला ऐसा कुछ नहीं था जिसमें मैं रिग्रेट करूँ, जिसे मैं चेंज करना चाहूँ। बिकॉज अगर मैं नोटिस करूँ ना, मुझे फर्स्ट ईयर में अगर मैं सोसाइटी में नहीं होती तो मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज नहीं होती कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट पे फोकस करो उस पे। फिर अगर मैं उस पे छोड़ के चीजें एक्सपेरिमेंट नहीं करती तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, मैं किस चीज में इंटरेस्ट दे रही हूँ। अगर मैंने इंटर्नशिप में 8 महीने वो इंटर्नशिप नहीं की होती तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, मुझे पता नहीं चलती कि चीजें कैसे मेंटेन हो रही है। दो वो चीजें मेरा कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट लाया, बट वो होना जरूरी था। मेरे को पता है ना कि हर किसी के प्लस एंड नेगेटिव होते ही है, तो आई फील लाइक कि जितना भी नेगेटिव हुआ भी, वो नेगेटिव भी होना जरूरी था ताकि मैं इस स्टेज पे पहुंच पाऊँ। तो मेरे अंदर से आया यार कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग टू चेंज अबाउट थिंग्स, देयर इज नथिंग टू चेंज अबाउट थिंग्स कि जिसको मैं गिल्ट करूँ या थोड़ा सा वो रहूं। एंड उसने मेरे को बोला एचआर ने कि आई रियली लाइक अबाउट दिस थिंग्स कि इफ यू डोंट हैव एनीथिंग यू डिडंट से एनीथिंग, तुम्हें कुछ तो बना के बोलना है। एंड दिस अ फेमस थिंग कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं है कुछ तो पूछ ही लो एंड में इंटरव्यू के। तो कई बार ना इंटरव्यू को भी ऐसा लगता है कि ये फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रही है। तो पता ऑनेस्टली डिपेंड करता है इंटरव्यू से इंटरव्यू। काफी इंटरव्यू लगता है यार पूछना चाहिए, काफी को लगता है कि भाई फॉर्मेलिटी के लिए क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो ठीक है। तो तभी वो लक वाला फैक्टर आता है। तुम्हारा जो इंटरव्यू ले रहा है वो कैसा पर्सनालिटी है तुम्हें नहीं पता है। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तब बेस्ट पार्ट ये होगा उसमें कि तुम जो हो, तुम्हें जैसा लगता है, बी यू, वॉट एवर यू थिंक इज राइट टू डू। एंड यू नो कि भाई ऐसी चीजें होनी चाहिए, तुम ऐसे हो जहाँ पे तुम्हारा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तुम उस पर वर्क करो बस। वर्क ऑन योर सेल्फ, बाकी चीजें तो हो जाएंगी। तो मेरा एचआर राउंड हुआ एंड भाई मुझे तो कुछ होश नहीं था। फिर एकदम से आता है, फिर 5-10 मिनट बाद दीपिका, अब जब मुझे स्टिल देयर इज अ मूवमेंट, जैसे 5 लड़कियां बैठी है, जो हमारी जो पीओसी होती है, पीओसी आती है। एंड हर वर्ड वाज कि दीपिका देयर इज वन गुड न्यूज एंड द वन बैड न्यूज। एंड शी सेड कि गुड न्यूज इज दीपिका यू गॉट सिलेक्टेड एंड द बैड न्यूज इज दीपिका ओनली यू गॉट सिलेक्टेड। तो वो मोमेंट, और वो शाम के ऐसे 6-6:30 बज रहे थे क्योंकि सुबह से लेकर शाम हो गई थी। और उसी में हमारे जो होता है ना सेशन होता है ओए से पहले, जहाँ पे वो आते हैं इंडक्शन, अपना जोमेटो के बारे में बताते हैं, इंटरेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। रिप्लेसमेंट टॉक, वो भी उसी दिन हुआ था सब कुछ। तो पूरा दिन ऐसे ड्रेन हो गया था, पूरा फोकस नहीं जा रहा है, चीजें आगे पीछे हो रही है, इंटरव्यू पे से होप हो रहा है नेक्स्ट राउंड कब होगा, ये कब होगा, ऐसे कैसे होगा, वो सब चीजें चल रही है। तो शाम हो गई थी, थोड़ा सा बातचीत के लिए भी सैड होता है। एडवांस अच्छा लगता है अगर तुम्हारे साथ कोई और भी होता है तो चीजें डिस्कस हो जाती है, चीजें प्लानिंग हो जाती है। मेरे पास नहीं था कोई, बट ठीक है। वो फर्स्ट कंपनी क्रैक करना with a girl who has rejected the 3 companies during their internship period and got selected in the first company that came to the campus with one of the highest packages. It was shocked. It was the happiest moment that I ever had. I shared the moment with my family, and that was the moment that I feel like you know, trust yourself, trust your inner voice. Now, because पता है ऐसा होता है, काफी जगह बच्चे शायद फील कर पाए सब इंटर्नशिप पीरियड में। इफ यू नो कि तुम्हारा लेवल यहाँ पर है और तुम अभी भी यहीं पर हो, यू आर सराउंडेड विद ऐसे 2 कैटेगरी के पीपल। इंटर्नशिप चल रही है तो चलते काफी सारे बच्चे अब सेलेक्ट हो चुके हैं, काफी सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं। इफ यू द पार्ट ऑफ नॉन सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और तुमने वो सिलेक्टेड वाले के लिए प्रिपरेशन करी थी, मेहनत करी थी, तो मेरा थोड़ा सा वैसा लगता है कि तुम्हें ना साइलेंट फील हो रहा है। एक ना ग्रुप डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं क्योंकि जैसे तुम्हारे काफी सारी लड़कियां अलग से स्टूडेंट्स है जो कि कंपनी में हुए हैं, तो फ्रेंड्स बनना शुरू हो जाएंगे, उनका एक टॉक होना शुरू हो जाएगा, उनके पास एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। व्हेन यू गो विद ना गूगल की कैप और बैग, जेपी मॉर्गन का ये, माइक्रोसॉफ्ट का ये, मैं तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस ये था, मेरा वो था, ये कर लो वो कर लो। तो ना कहीं आता है, लो पफिंग्स आता है, तुम खुद को ना एक एक्साइटेड वाली वाइब देना शुरू कर देते हो। उस टाइम पे बस तुम्हें अपने अंदर की वॉइस सुननी होती है। तो दिस इज व्हाट आई हैव डन एंड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस इन होल ईयर। एंड एक चीज बोलूंगी, अगर तुम्हारा ऐसा है ना गोल कि तुम्हें प्लेसमेंट क्रैक करनी है, तुम्हें एक अच्छी कंपनी में जाना है, लेट मत करो, मतलब जितना जल्दी शुरू हो सके कर दो।
बिकॉज 4 साल इज नॉट जस्ट इनफ कि तुम एक्सपर्ट हो जाओ। अगर तुम्हें एक्चुअल में टेकी है, इंजीनियर बनना है, चीजें सॉल्व करनी है, स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज यू लाइक इट, यू लव इट। मेरी एक फ्रेंड है, वो ऐसे स्टार्टिंग में फोकसिंग ऑन सेमेस्टर वाली स्टडीज ज्यादा, एंड उसकी सेमेस्टर में बहुत अच्छे नंबर आया है। 9+ CGPA 9.5 है, अच्छे है काफी। शी इज एक्चुअली गुड एट स्टडीज, कम्युनिकेशन में काफी अच्छी है, उसने काफी सोसाइटी में पार्ट लिया। बट द ओनली ड्रॉबैक वाज कि शी वाजंट स्टार्टेड अर्ली। 3rd ईयर के इंटर्नशिप में शी वाज नॉट ऐसे फोकसिंग ऑन मच इंटर्नशिप, बट शी वाज ट्राइंग। उसने फोकस किया प्लेसमेंट में, तो प्लेसमेंट के कुछ टाइम पहले ही उसने पढ़ना शुरू किया। तो वो उसका ड्रॉबैक हो गया। क्योंकि अब जहाँ पे मैं तुम्हें बताया था अपनी जर्नी में कि मैंने यहाँ पे ये चीज करने से ये चीज लर्न करी और उसके बाद मैंने इम्प्रूव किया, उसकी जर्नी ही लेट शुरू हुई, तो उसका इम्प्रूवमेंट वाला एरिया काफी आगे आया है। तो शी वाज स्ट्रगलिंग थोड़ा सा, बट ऑल्दो आई नो हर कि किस तरीके से चीजें करेगी वो, शी विल एबल टू डू दैट, शी विल एबल टू क्रैक इट, बिकॉज जैसे कि मुझे पता था मेरी इनर वॉइस क्या है, मेरी कैपेबिलिटी क्या है। शी नो हर कैपेबिलिटीज एज वेल। तो दैट्स अ ओवरऑल एक्सपीरियंस। फिर तो मैंने मजे काटे हैं, पता है नमक नहीं छुई। बहुत पढ़ लिया मैंने। तो फिर जनवरी में यहाँ से ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद ये चीजें जा रही है, चल रही है। कॉप अप ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है जहाँ पे मैं अपने घर से बाहर आई हूँ। तो काफी सारी चीजें जो यहाँ पे अब मैं सीख रही हूँ, यहाँ पे मैं स्टुपिडिटी कर रही हूँ, फिर उसे करेक्ट कर रही हूँ। सेम पैटर्न रिवॉल्व हो रहा है बट इन न्यू सिचुएशन के साथ। तो हो गया। इतना ही था आई गेस टू शेयर माय एक्सपीरियंस। मुझे दो चीजें और जानना, हम्म। लाइक वन इज लाइक तुमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारी, हम्म। एंड सेकेंड इज लाइक तुम इंटर्नशिप कर रही थी, हम्म। ट्रैवल 1.5-3 घंटे डेली का कर रही थी, हम्म। तुम्हें सिलेबस भी करना था, तुम्हें अपने प्रोजेक्ट्स भी करने थे अलग से, डेवलपमेंट पार्ट भी ऐसे भी करना था, लाइक हम्म। हाउ टू मैनेज। हाउ टू मैनेज। गुड। फर्स्ट पहले मैंने कैसे अपनी कम्युनिकेशन सुधारी। तो आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल। मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी थी, कुछ कुछ कैमरे के सामने आए, फिर टॉक अबाउट एनी टॉपिक, कुछ पढ़ाना है तो कर दिया। इंस्टाग्राम चैनल बना रही, उसमें डीएसए के अपडेट्स डाल दिया। बुक रीडिंग शुरू हुई थोड़ा बहुत, वैसे कंसिस्टेंट नहीं थी बहुत सारी चीजों में। मैंने लोगों से बात, मैंने लाइब्रेरी शुरू, हाँ ऑल्सो मैंने डिडंट मेंशन इट कि अपने प्लेसमेंट के टाइम पे, प्लेसमेंट शुरू होने से पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। मैंने घर पे नहीं पढ़ा था। घर पे एक अलग एनवायरनमेंट होता है, लाइब्रेरी का एक अलग एनवायरनमेंट होता है। तो आई वेंट टू द लाइब्रेरी, वहाँ पे मुझे लोग मिले, वहाँ पे मैंने इंटरेक्ट किया, वहाँ पे लोगों को मैंने, मतलब मेरा एक फ्रेंड मिल गया था इवेंचुअली समहाउ। नॉट फ्रेंड एग्जैक्टली, वहाँ पे एक फ्रेंड बन गया था, वो भी प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा था। तो वहाँ पे मेरे फ्रेंड बना, तो वहाँ पे मुझे डीएसए पढ़ाना शुरू किया। तो व्हेन यू स्टार्ट टीचिंग थिंग्स, तो भाई वो कम्युनिकेशन अपने आप ही सुधर जाती है। एक होता है ना कि एक होता है ट्यूटोरियल वगैरह देख के, वो ट्यूटोरियल हेल्प में तुम फंस जाओगे। तो तुम चीजें करते हो, एक एक्सपीरियंस के साथ चीज आती है। पर आई फील लाइक जो एक्सपीरियंस के साथ हम चीजें सीखते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर थिंग। तो मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल एक्चुअल में उसे इम्प्लीमेंट करा कि ठीक है मुझे उस चीज को, सिनेरियो को फेस करना है। मल्टीपल केसेस पढ़े कि एचआर के क्वेश्चन के कैसे आंसर्स करने हैं। उस चीज को एक्सेप्ट किया कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब है और मुझे इम्प्रूव करना है। तो तुम्हारे पास सॉल्यूशंस है, गूगल है, हर जगह सॉल्यूशन है। बट यू हैव टू एक्सेप्ट कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है और तुम उसे कितना बिल है तुम्हें उसे सॉल्व करने का। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कम्युनिकेट विद पीपल और रीडिंग बुक्स, ये 3-4 चीजें करी थी। इससे इतना अच्छा नहीं था मेरा, बट ठीक है, आई फील लाइक it बेटर हुआ था काफी, उस टाइम पे इम्प्रूव हुआ था। और द अनदर थिंग इज कि मैंने कैसे टाइम मैनेज किया। टाइम मैनेज कैसे किया था, मेरा जो कॉलेज था उसका डेली, कि मुझे डेली आना जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे टीचर्स काफी अच्छे थे। और आई वॉज नॉट द स्टूडेंट जो उसकी अटेंडेंस अच्छी थी। मुझे पता चल गया था कि यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा सीन नहीं होगी। मुझे क्या करना है, सेम और एंड में अच्छे नंबर लाने हैं। और एक नॉर्मल सा कि ठीक है कभी कभी शक्ल दिखाने चले गए, थोड़े से कॉलेज में एक्टिव हो गए, ऑनलाइन चीजें कर ली, उन सब चीजों में ध्यान दिया था। और क्योंकि ट्रैवल सच में एग्जॉस्ट हो रहा है, जिस दिन ट्रैवल होता है उस दिन मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ, मैं अपने इंटर्नशिप का काम कर रही होती हूँ, लैपटॉप लेके घूमना पड़ता है मेरे को। मेट्रो के बीच में भी मैंने अपने इंटर्नशिप का काम किया है कि मैं ठीक है कुछ तो कोड फट गया है वहां पे ठीक करने बैठ रही हूँ। और तो मैं नाइट, मैंने रात रात में काम किया है घर पे। टाइम मैंने जैसा किया था कि
प्रायोरिटी कर दो कि ठीक है किसकी कितनी प्रायोरिटी है, किसको कितना टाइम देना चाहिए। देखो ना, एक बॉक्स होता है अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। तो अर्जेंट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, और ऐसे वो चार बॉक्स बन जाएंगे बेसिकली, 0 1 1 1 0 करके। तो उसके हिसाब से यू विल गेट टू नो थिंग्स कि किसको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। और काफी सारी चीजें तुम्हें हटानी पड़ती है। अगर तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें जो तुम्हें कंपल्सरी टू डू है, टीएस से कंपल्सरी टू डू है, सीएस फंडामेंटल से कंपल्सरी है, इंटर्नशिप एंड कॉलेज, ये चार चीजें इसमें चाहकर भी हटा नहीं सकती। तो बाकी सारी चीजें हो गई जो तुम्हारा फन वाला पार्ट आता है ज्यादातर। तुम ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ भी रैंडम वीडियोस देख रहे हो, तो यू हैव टू से नो टू देम। तुम्हें वो चीजें कट आउट करनी पड़ेगी। एटॉमिक हैबिट्स में ऐसे लिखा गया है कि जिसको चीज को तुम्हें हटाना है, जिस चीज की हैबिट तुम्हें रिमूव करनी है, मेक इट हार्डर। जिसको जितना हार्ड कर दोगे वो तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट चली जाएगी फिर वो। तो इंस्टाग्राम में डिलीट कर दिया था, और यूट्यूब पे भी इतना नहीं देखती थी, टाइम ही नहीं मिलता था। मतलब इतना ऑक्यूपाइड हो गई थी चीजों को लेके कि मेरे पास जो एक्सटर्नल चीजें भी, लोगों का टाइम जाता है जो उन्हें पता नहीं चलता कि यहाँ पे वो टाइम चला गया, वो नहीं होती। प्लस जैसे कि मैंने बताया था सोसाइटीज में, मुझे पता सोसाइटी वाज नॉट इम्पोर्टेंट, तो जिनमें थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था वहां से मैंने हटा दिया था। तो हो गया था, मतलब मेरे कॉलेज ने काफी हेल्प किया था, मेरी एक्चुअली ब्रांच ने काफी हेल्प किया था कि नॉट टू बी वेरी सीरियस अबाउट अटेंडेंस चीजों को लेके। मेरे फ्रेंड्स थे जो मतलब बहुत ऐसे मतलब वो मेरे ऐसे बैकबोन थे। मेरे कॉलेज के सेमेस्टर की स्टडीज होती थी तो उनके सारे नोट्स मेरी हेल्प करते थे, ग्रुप मीटिंग में मेरे को पढ़ा देते थे। ये सब चीजें, मतलब फ्रेंड्स आर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कॉलेज जर्नी। चूज योर फ्रेंड वाइसली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाँ, हार्ड था, रात रात में जगा था, स्लीप सेक्रीफाइस करी थी। आज थोड़ा सा खराब मैनेजमेंट हुआ तो कल थोड़ा सा बेटर इम्प्रूव किया था। ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऑल यू नीड इज प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, नो योर गोल क्या है, उसके हिसाब से उस पाथ में चलना शुरू कर दो। बस, जहाँ पे तुम्हें लगा तुम गलत चल रहे हो उस चीज को ठीक कर दो, खत्म। मेरा इतना ही रहता है ओवरऑल हर चीज में। Like, did you face any backlog? बैकलॉग? कभी कभी दिक्कत में आ गया हो? नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था कि अगर तो बैकलॉग वो आ गया तो काफी इंटर्नशिप में काफी सारी कंपनी से बैठने नहीं देते हैं। तो बस एक भी डेड डेड बैकलॉग भी होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है डेड बैकलॉग। एक्टिव इज समथिंग कि तुम्हारा अभी भी वो भी क्लियर नहीं हुआ एग्जाम, तुम्हें करना है। और डेड इज कि तुम्हारा आया था किसी में, तुम फेल हुए थे किसी में, बट तुमने उसे क्लियर कर दिया है। तो काफी सारी जो टॉप कंपनीज होती है तुम्हें उसके डेड बैकलॉग में भी बैठने नहीं देती है। तो वेरी हाई प्रायोरिटी एग्जाम्स के टाइम पे तुम्हें अपना इतना तो लाना ही है कि अच्छी डिसेंट सीजीपीए बन जाए और बैकलॉग्स ना आए। क्योंकि मेरा सब गोल है विच इज गेटिंग प्लेस्ड, वो ही सेंसलेस बन जाएगा। तो डेड बैकलॉग का तो आई वुड से कि अगर आ गई है, अगर कोई बैकलॉग आ गई है तो पहले तो उसे सॉल्व करो, बट ट्राई करो कि नहीं हो, एटलीस्ट पास तो हो। चाहे सीजीपीए कॉम्प्रोमाइज हो जाए बट हर सब्जेक्ट में पास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया तो इसका मैं शायद आंसर नहीं कर पाऊँ ठीक से कि कैसे उससे फेस करते हैं। ओके, और कुछ टिप्स वगैरह का बात कर लेते हैं। ओके वैसे तुमने दिए तो बहुत दिए बट फिर भी। ओके, सो few tips that I would love to give apart from this is not to run behind the money. मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप की सैलरी पूछोगे ना, 6K भाई, हार्डली 6 to 7K। इमेजिन द हार्ड वर्क दैट आई वाज पुटिंग, रात रात को बैठ के कोड कर रही हूँ मैं, तो मैं महीने में 6,000 मिल रहा है, नाम का पैसा है वो बस। नॉट टू रन बिहाइंड द मनी। और हार्ड पार्ट से भागो मत, तुम्हारे पास एक इजी स्कोप मिलता है। हाँ, ये मैंने बताया नहीं, मेरे पास एक स्कोप था जहाँ पे ये था कि तुम्हारा अगर तुम्हारी इंटर्नशिप नहीं लगी है तो तुम अपनी कॉलेज की जो पेड इंटर्नशिप होती है 1100 1500 रुपए में देके खरीद सकते हो और वो कर सकते हो। काफी सारे बच्चे वही कर रहे होते हैं। और वो मुझे इतना टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, पैसा बर्बाद, सब कुछ लग रहा होता है, क्योंकि भाई कुछ सीखने को नहीं मिलता है, फालतू का टाइम जाता है। मतलब मेरे लिए ना टाइम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, नो योर वर्थ। मतलब अगर तुम कहीं पे 1 घंटा भी दे दो, 2 घंटा भी दे दो, क्या वैल्यू निकाल रहे हो तुम उसकी। तुम्हारे तुम्हारे तो पैसे, तुम्हें अपने पैसे की वैल्यू होनी चाहिए, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर मैंने अपनी वो बेकार से, नॉट बेकार सॉरी, बट वो इंटर्नशिप जहाँ पे टाइम एनर्जी सब कुछ कितना सारा जा रहा था,
मुझे काफी सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती थी उस एक चीज के लिए, क्योंकि मैं ऑनरशिप ले रही थी उसकी कम्प्लीटली। मुझे पैसा उसके लिए बहुत कम मिला, लेकिन उसे चीज में सीखने को क्या मिला, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। तो नो योर वैल्यू योर टाइम, वैल्यू योर वर्थ, एंड अपने आप से भरोसा मतलब मत नहीं तोड़ो कभी कभी। तो या बाकी सब हो जाएगा। मतलब इवेंचुअली गलत बात में भी लग रहा होगी, तुम किसी भी सिचुएशन में हो तुम उससे निकल जाओगे। ऑल यू नीड इज कि तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसके सॉल्यूशन पे वर्क करना है, खत्म। बस आई फील इतना ही, कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए लाइफ को, सिंपल ही रखो तो बेटर है। During your preparation, was there हम्म। any time so like when you felt demotivate like बहुत ज़्यादा कि अब इंटरनेट छोड़ दो या फिर डीएसए छोड़ दो कभी, ऐसा कुछ? हाँ, मेरे बहुत अप्स एंड डाउन गए हैं। मतलब छोड़ने का नहीं, नहीं सॉरी, छोड़ना नहीं है मेरे को। मुझे पता है कि बेकार है, डिमोटिवेटेड है, नहीं हो रहा है, हो सकता है पता नहीं रिजल्ट आए ना आए, क्योंकि मैंने देखा है। मैंने फर्स्ट ईयर से डीएसए कर रही हूँ, स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन कंसिस्टेंट नहीं थी। हाँ। मैंने फर्स्ट ईयर से डीएसए कर रही हूँ, डेवलपमेंट कर रही हूँ, बहुत सारे कॉन्फिडेंट इनफ अबाउट टेक है मेरे, नॉर्मल मेरे किसी में बैकलॉग नहीं आया है। मेरे आसपास लोगों के हो रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने अपना काम करना नहीं छोड़ा है। डिमोटिवेट हुई हूँ, लो फेज आया है, लक पे मैंने बहुत ऐसे वो किया है, कितना बैड लक है, वाई आई एम है। मैं तो बताया ना, फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा था कि सेकेंड ईयर में छोड़ दूंगी मैं, गूगल से गूगल वगैरह ये कर दूंगी वो कर दूंगी, बहुत ईजी है। सच में आई शुड नॉट से दिस, पर मुझे ऐसा लगता था कि इसकी थर्ड ईयर में इंटर्नशिप नहीं लगी तो वो बंदी कर क्या रही है, तब तो लग ही जानी चाहिए। सोच रहे हो, मेरा ये मेंटालिटी था फर्स्ट ईयर में। बट तब मैं उस फेज में आई जब मुझे पता चला कि भाई नहीं, मेरी नहीं लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। जो मैं समझती थी भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं क्या ही पढ़ते होंगे, फिर तो पक्का मस्ती करते रहते होंगे। मैंने मस्ती नहीं करती, लेकिन तब भी मैं थर्ड ईयर में उस फेज में थी जहाँ पे मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी। तो इट्स लाइक भगवान जी ने मुझे वो फेज दिखाया जो मेरे बहुत वर्स्ट फेज था। फिर वर्स्ट फेज से मेरी एक्सपेक्टेशन जीरो हुई और मैंने काम करना शुरू किया। तो मेरे पे जो वर्क किया था वो था कि डू योर वर्क कंसिस्टेंटली। तो डिमोटिवेशन बहुत था, लेकिन प्लीज नेवर एवर गिव अप। गिव अप इज नेवर एन ऑप्शन। आखिरी तक भी तुम्हारे पास गिव अप इज नेवर बी एन ऑप्शन। तो अगर तुम गिव अप कर रहे हो ना तो प्लीज थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बट वापस जरूर आना। ठीक है, 5-10 दिन ब्रेक ले लिया, एक हफ्ता ब्रेक ले लिया, सॉर्ट करने के लिए, प्लान करने के लिए, बट वापस आ जाओ। गिव अप मत करो। बाय द वे, कितने कितने डीएसए के क्वेश्चन लगा दिए थे? लीड वर्ड पे तो होंगे शायद 350, 400, 500। कौन सा डिफिकल्टी लेवल लाइक पूरा इजी या मीडियम मीडियम? नहीं नहीं, हार्ड भी था, इजी ज्यादा था। वो ये रेशियो जो होता है, इजी के ज्यादा होते हैं, मीडियम के उससे ज्यादा नहीं, मीडियम के उससे कम होते हैं, हार्ड के उससे कम होते हैं। बट वो ये कि हार्ड डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन थे, मुझे याद नहीं, मतलब मैंने महीनों पहले छोड़ दिया, शुरू करना है वापस एक्चुअली। बट कहाँ से तुम पढ़ते लाइक रिसोर्सेज? मेरे दो रिसोर्सेज थे, नहीं दो तीन थे आई गेस। सबसे पहले जो मैंने कोर्स किया था जावा का, अपना कॉलेज का फर्स्ट ईयर में लिया था, उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाए थे एंड टू एंड। तो उसने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बनाए थे वो तो मैंने अच्छे से करे थे। उसके बाद था मेरा साइबर की शीट। साइबर शीट मैंने A to Z कंप्लीट की, वो 400 वाली कंप्लीट की थी अच्छे से, बहुत बार ऐसे रिपीटेशंस में भी की थी। और उसके बाद मैंने रैंडम ऐसे लीड कोड में जो डेली क्वेश्चंस होते हैं वो करे थे। और उसके बाद तो मेरा ये बहुत ज्यादा मल्टीपल आइट्रेशंस हो गई थी, तो मुझे कुछ नया चाहिए था। तो मेरे फ्रेंड का एक कोर्स था लर्न यार्ड का, फराज का है वो। तो उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो मैंने उसके थोड़े बहुत क्वेश्चंस लगाए थे। मैं उसका फुल बहुत अच्छे से नहीं कर पाई थी, बट हाँ मेरा वो जो लास्ट ईयर की प्रिपरेशन, प्लेसमेंट की प्रिपरेशन थी, उसमें मैंने थोड़ा सा उसका यूज किया था। मैं रिविजन बहुत करती थी, मतलब लाइक एक ही क्वेश्चन को बार बार करो? रिविजन इन सेंस ऑफ, नहीं मेरे पास जो नोट्स थे, जैसे कि तुम्हें पता है कि डैट साइकिल ग्राफ के लिए ऐसा फ्लो होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि तुम्हें पता ही होने चाहिए ऑन द टिप्स। तो उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी था मेरे अकॉर्डिंग, तो वो मैंने बहुत अच्छे से किया था। एंड व्हाट अबाउट द डेवलपमेंट पार्ट?
डेवलपमेंट मेरा यार, मेरा ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लक फैक्टर था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप। वहां पे मैंने कहा था कि मुझे ऑनरशिप लेनी पड़ी बाय डिफॉल्ट। मुझे कोड करना पड़ा बाय डिफॉल्ट। मेरे को सॉल्व करना पड़ा ऑल द कोडिंग थिंग। और उसमें मुझे एक चीज समझ आई, पहले तो जनरली लोग क्या करते हैं, एक ही फाइल में सारा कोड डालते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कर देते हैं, चैट जो बताता है। बट जब तुम एक एक्सेल प्रोजेक्ट पे काम करते हो, इट इज नॉट डूएबल। ये सब तुम पहले सिर्फ बुक्स में पढ़ रहे होते हो कि स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, एक लेयर्स पे फ्लो करो, मतलब थोड़ा सा कस्टमाइज और इजी टू रीड कोड होता है ना चीजें। वो सब मुझे अभी भी आता है। मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था उस पे, उस इंटर्नशिप में बहुत बकवास था। फिर मैंने कहा यार ये थोड़ा सा रीयूजेबल हो सकता है, उसको मैंने फिर रीयूजेबल बनाया। फिर उसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करे, फिर उसके राउट्स को और स्ट्रक्चर किया। तो यहाँ ये वाला पार्ट में डेवलपमेंट में कैसे आया था, मैंने चीजें करके सीखी है। और मैं ऐसा कहूंगी कि ट्यूटोरियल हेल्प पे मत फंसो। अगर तुम्हारे पास इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी है, इट्स फाइन, नहीं है कोई बात नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अपने लिए प्रोजेक्ट्स बनाओ। मैंने गेम्स बनाए अपने लिए, नॉर्मल उसको मैंने डिप्लॉय किया है। और और अपना रेज्यूमे बिल्डर, तुम्हारा जो पोर्टफोलियो वेबसाइट हो गई, मतलब बेसिकली स्टार्ट बिल्डिंग। वंस यू स्टार्ट बिल्डिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स, तुम्हें डेवलपमेंट आ जाएगी। सिर्फ वीडियो से कुछ नहीं होगा, थ्योरी पढ़ के नहीं होगा, प्रोजेक्ट्स बना के ही होगा। बाय द वे, लाइक इंटर्नशिप से पहले तुम्हारा डेवलपमेंट सही सा था, लाइक मिलने के बाद तुम बहुत ज़्यादा सीखे। हाँ मतलब ओके ओके था कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड आता है, नोट जैसा आता है, छोटे मोटे कुछ ऐसा। तो उसने उसमें ले लिया था, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया टू बोल ठीक है। वो तो ना स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीना कैसे बच्चा कर रहा है। तो 1 महीना, स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीना मेरी बहुत एनर्जी गई थी, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टार्टिंग में ही सीखना पड़ा था। तो मुझे डिसेंट आता था कि चीजें होती क्या है, लाइब्रेरीज क्या होती है, एक लोकल सेटअप चीजें थी। उसी के साथ मैंने इंटर्नशिप शुरू कर दी थी। तो इंटर्नशिप मिल जाए तो बेस्ट होती है। एंड तुमने डेवलपमेंट पार्ट पढ़ा कहाँ से? हाँ मेरा वो था, हर किरत। क्या? हर किरत एक यूट्यूबर है, 100x टैब। अब तो उसमें काफी कोर्सेज वगैरह आ गए हैं। काफियों को वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि ना रीजन बीइंग इज बहुत डेप्थ में, बहुत ज्यादा लेंदी वीडियोस थी उसकी। और थोड़ा सा हैवी चीज है उसकी, मतलब टेक रिलेटेड में काफी हैवी जाता है। अदरवाइज चाय विद कोड थोड़ा सा सिंपल टू है। मैंने कोई डेप्थ के लिए कोई प्रॉपर रिसोर्स फॉलो नहीं किया है। इट्स अबाउट कि क्या रिक्वायरमेंट आई है, किस तरीके से चीज आई है, उस तरीके से मैंने उसे फॉलो अप किया है। जो मेरा गोल है उसको अचीव करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, वो सीख के काम आगे बढ़ी हूँ। तो पहले अपना नीश सेलेक्ट कर लो, लेट्स से बैकएंड है। उसके बाद देखो बेसिक्स क्या आनी चाहिए, नोडजेस भी तुम फॉलो कर सकते हो। तो एक लोकल सेटअप बना लो। उसके बाद देखो तुम्हें प्रोजेक्ट क्या बनाना है, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड चीजें शुरू कर दो, कि उस प्रोजेक्ट के बारे में तुम्हें सब पता है। फिर तुम थोड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट उठा लो उससे ज्यादा, फिर उसके बारे में अच्छे से जान लो। तो इस तरह से तुम्हारी डेवलपमेंट हो जाएगी। तुम्हें सब कुछ आना की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें A to Z नहीं सीखना है किसी में भी, डेवलपमेंट में भी। हाँ, before we wrap up, what advice would you give to students who preparing for extent? लाइक मेरे पास भी कुछ कमेंट्स आते हैं, ठीक है। लाइक मैं भैया, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, लाइक सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, या फिर कोई प्लेसमेंट चल रहा, तो वो क्या करे, कैसे लाइक प्रोसीड करे। उनको डीएसए मान लो किसी को आता है, किसी को नहीं आता, ठीक है, स्टार्टिंग है, किसी का कुछ है कि स्ट्रिक्ट नहीं बन पा रही है, लाइक छूट जा रहा है बीच बीच में, ठीक है, तो उन्हें कैसे मैनेज करे। लाइक तुमने तो बहुत पहले स्टार्ट किया, फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करना बहुत टू अर्ली। इट्स टू अर्ली, बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। जब आई वॉज टू स्टार्ट, जब अर्ली काफी से शुरू कर दिया था, आई वुड से कि जो ऑब्वियसली अगर प्लेसमेंट तक आ गया और उसे चीजें नहीं आती है, तो भाई बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा डीएसए। मतलब तुम डेव को फिर भी सेकंड प्रायोरिटी में डाल दो, डीएसए को हाई प्रायोरिटी में जाके शुरू करो। और एसडी में स्ट्राइवर की शीट मुझे काफी सही लगती है, उसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो एक बार तो अच्छे से स्टैंडर्ड स्ट्राइवर की शीट लगा लो। अगर तुम बहुत ऐसे बिगनर हो, तुम्हें नहीं आता है बिल्कुल, तो स्ट्राइवर की मस्ट है। मीडियम वाले में इसका मतलब ये, मतलब मीडियम प्रिपरेशन मतलब कि तुम्हें डीएसए थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत डेव आता है, नॉट टू बी टू गुड एट एनीथिंग। तो उसके लिए अगर तुम्हारी स्ट्राइवर की शीट हो गई है, तो तुम क्वेश्चंस करने, वैरायटी उस रिलेटेड के क्वेश्चंस करने लगो। फिगर आउट कि तुम्हें कौन सा पार्ट है डीएसए का, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का नहीं आता है, किसी का ग्राफ नहीं है, किसी का डीपी बहुत वीक है,
उससे डरो मत, उसको स्ट्रॉन्ग करो, उस पर वर्क करना शुरू करो। और जो तुम्हारा ऐसे डिवाइड कर लो, तुम्हें मीडियम लेवल है, अगर तुम्हें कोई डीएसए का पोर्शन होगा जो बहुत अच्छे से आता है, तो वो बहुत अच्छे से नहीं आता है। तो जो बहुत अच्छे से आता है उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करो, जो बेकार आता है उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो। तो इस तरीके से रेशियो डिवाइड करो ताकि थोड़ा सा बैलेंस आउट हो। और डेफ के केस में बस एक प्रोजेक्ट अच्छे से होना चाहिए एटलीस्ट, तो फिर भी होता है अच्छा गुड टू गो। बट एक ऐसा होना चाहिए कि तुम्हें उसके बारे में बात कर सको। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट बना दो, फिर उसे साइड हटा दो, उसमें ज्यादा मत घुसो, फिर सीएस फंडामेंटल में करना शुरू कर दो। अगर तुम ऐसे एंड में आ गए बिल्कुल कि भाई अब तो बहुत जल्दी शुरू करना पड़ेगा, कुछ प्लेसमेंट आने वाली है, तो प्रोजेक्ट पे ज्यादा मत घुसो, सीएस फंडामेंटल एंड डीएसए पे फोकस करो। और जिस इंसान की अच्छी मतलब डीएसए अच्छा है और वो सब अच्छा है, तो आई वुड से कि सिस्टम डिजाइन पे दे कैन गो। बिकॉज पीपल कंपनी लाइक ब्लिंकिट जोमेटो, उन्हें स्केलेबल बनाना होता है प्रोजेक्ट, उन्हें डायरेक्टली तुम्हें कोड बेस में डाल देंगे, चीजों को चीज समझनी पड़ेगी। तो सिस्टम डिजाइन की नॉलेज होना गुड टू है। तो तुम अलग के लिए तुम सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, कॉन्टेस्ट देना शुरू करो, आईसीपीसी वगैरह पे ट्राई करना शुरू करो अगर तुम चीज अच्छी है, क्योंकि वो तुम्हें एक एज देती है ओवर एनी अदर स्टूडेंट। और तुमने आईसीपीसी वगैरह कर रखा है तो एक इमेज जो बनाते भाई आईसीपीसी मतलब मस्त है, ऐसे वाली इमेज बनती है उसकी। तो ये 3 लेवल के अकॉर्डिंग है आंसर्ड। Okay, thank you so much, Deepika, for joining us today and sharing your experience. थैंक यू सो मच चंदन फॉर इनवाइटिंग मी एंड टू लेट माय एक्सपीरियंस हेल्प अदर्स एज वेल। Thank you everyone for watching. If you have any questions, you can connect with Deepika on LinkedIn. I have added her profile in description. So stay tuned for much such inspiring conversation.